Good evening, friends. Myself, Dr. Neetu, and I welcome you to today's YouTube class on India US relations in 2025 partnership or strategic dilemma. So, let's start. This is very relevant topic in political science and international relations because India and the US are not just two powerful democracies but also strategic players shaping global politics today. Why it matters and strategic economic and टेक्नोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इस स्लाइड में हम समझेंगे. On one side, we have the United States, the world's oldest and still the most powerful democracy, leading the global order since World War II. On the other side, we have India, the world's largest democracy, a rising economic and geopolitical power in Asia. The partnership between India and the US is now seen as one of the defining relationship of the 21st century. But along with cooperation, there are also dilemmas, differences, and challenges. In the next coming minutes, we will explore this fascinating mix of partnership and strategic dilemma. Our next slide is about historical background. To understand India and US relations today, we must understand their historical background. इसमें जो कोल्ड वार का जो फेस है जिसमें इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट था वो वर्सेस यूएस का जो अलायंस है वो वो डिस्कस होगा. उसके बाद पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स एंड क्लोजर टाइज, then key milestones like 2005 civil nuclear agreements, 2016 major defense partner status, and 2020's Quad and Indo-Pacific cooperation. During the Cold War, uh, during the Cold War, India followed the path of non alignment, meaning it did not join either the US led bloc or the Soviet bloc. The United States often saw India as too close to the USSR, especially after the 1971 Indo Soviet Treaty. But after 1991, things began to change with economic reforms and the end of the Cold War. India started opening up to the world. Relations with the United States improved significantly. और इसमें जो की माइलस्टोन्स थे कि in 2005 there was a civil nuclear agreement. This was a turning point. For the first time, the US recognized India as the responsible nuclear power. Even though India is not part of the Nuclear Non Proliferation Treaty, which is known as NPT, and in 2016 major defense partner status. This elevated India's role in defense cooperation. And in 2020s, India or say Indo-Pacific cooperation and Quad, with China rising, India and the US, along with Japan and Australia, became more aligned strategically. And after that, current areas of cooperation. This slide will discuss about challenges and tensions, but I think there is another slide. Okay, I think okay. Um, there was another slide. Okay, India's strategic dilemma and historical background. I think I skipped that slide where I have mentioned करंट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जिसमें जो स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन है वो डिस्कस किया गया था क्योंकि जो दोनों कंट्रीज़ है वो डीपली इन्वॉल्व है इंडो पैसिफिक ये इंडो पैसिफिक एरिया में
जो क्वाड की जो ग्रुपिंग है वो बेस्ट एग्जांपल है। दे आर वर्किंग ऑन डिफेंस डील, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लाइक युद्ध अभ्यास एंड द इंटेलिजेंस शेयरिंग। और उसके बाद इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस, उनके ट्रेड है इंडिया और यूएस के बीच में, उसने 200 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर दिया है एनुअली। The US is one of the India's largest trading partners, and India is emerging as a hub of manufacturing, semiconductors, and technology. After that, technology and space, both countries are operating on artificial intelligence, 5G, and cyber security. और जो नासा और इसरो है उन्होंने भी हाथ मिलाए हैं फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन इंक्लूडिंग जॉइंट मिशंस एंड इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड डायस्पोरा। उसमें ये कि जो इंडियन डायस्पोरा है यूएस में इज़ मोर देन 4 मिलियन स्ट्रॉन्ग। दे आर अ ब्रिज बिटवीन द टू नेशंस ऑल्सो। Lakhs of Indian students are studying in American universities, contributing to knowledge exchange. आफ्टर दैट जो क्लीन एनर्जी या फिर क्लाइमेट और एनर्जी वाला जो हमारा सेक्शन है इसमें भी हम दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है वो प्रायोरिटी है दोनों कंट्रीज़ के लिए। द यूएस इज सपोर्टिंग इंडियाज गोल्स फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एंड रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। आफ्टर दैट द स्लाइड ऑफ करंट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, जिसमें इसमें कुछ चैलेंजेस और टेंशन्स भी आजकल हम देख रहे हैं। जैसे जो चैलेंज है और जो टेंशन्स है इसमें ये है कि जो ट्रम्प है उन्होंने अ, जो हमारी कंट्री है इंडिया उसको एक टोटली वन साइडेड डिजास्टर बोला है। और ये रिमार्क किया है कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू चाइना, फॉलोड बाय अ पार्शियल बैक ट्रैक और इम्पोजिंग एन एग्स ऑर्बिटेंट फी ऑन H1B visa applications, heavily affecting Indian professionals, linking trade relief to India, reducing Russian oil purchase and using steep tariffs 50%। जो ट्रम्प का जो रवैया है वो किस तरीके से पहले कुछ भी बोल देता है उसके बाद फिर वो अपनी बात से तुरंत पलट जाता है, ये सब चीज़ें आजकल हम देखने को आजकल हमें देखने को मिल रही है। जैसे जो ये वाला पॉइंट है, ट्रम्प कॉल्ड इंडिया यूएस ट्रेड अ टोटली वन साइडेड डिजास्टर। इसमें ट्रम्प ने कहा कि भारत और अमेरिका का जो व्यापारिक रिश्ता है वो पूरी तरह से एक तरफा आपदा है। उनका आरोप था कि जो भारत है वो अमेरिकी सामानों पर ज़्यादा टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका भारत से बहुत ज़्यादा उत्पाद आयात करता है। उसके बाद जो भारत है वो चीन की ओर चला गया है, ये वाला उनका स्टेटमेंट। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमने भारत और रूस को अ, चीन के हाथों खो दिया है, या फिर मतलब हमने भारत और रूस को वी हैव लॉस्ट इंडिया टू चाइना, सॉरी। भारत में इसे लेकर नाराज़गी हुई, बाद में उन्होंने सफाई भी दी और कहा कि भारत से रिश्ते हमारे वो विशेष हैं और हमेशा मोदी के दोस्त रहेंगे। इस तरीके की स्टेटमेंट उन्होंने दी। और जो $1 लाख की जो भारी फीस है H1B वीज़ा के ऊपर वो लगाने की उन्होंने घोषणा की। इसका जो सीधा इम्पैक्ट है वो भारतीय जो आईटी प्रोफ़ेशनल्स हैं और जो कंपनीज़ हैं इनके ऊपर पड़ेगा। भारत सरकार और जो प्रवासी भारतीय समुदाय हैं उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया। उसके बाद जो 50% जो टैरिफ है, ट्रंप ने भारत के द्वारा जो रूसी तेल है वो खरीदने के मुद्दे को व्यापार वार्ता से जोड़ दिया और उन्होंने चैलेंज किया कि अगर भारत रूस से तेल का आयात कम नहीं करता, यानी कि तेल को कम इम्पोर्ट अगर वो नहीं करेगा तो हम भारतीय सामानों पर 50% तक टैरिफ लगा देंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी। एक सेकेंड, ये वाली जो स्लाइड है इसमें ट्रेड का जो जो डिस्प्यूट है, जो भी मैंने डिस्कस किया कि किस तरीके से टैरिफ 50% टैरिफ की उन्होंने घोषणा की है, वीज़ा के जो इश्यूज़ हैं, ये सब अभी डिस्कस हो चुके हैं। इंडिया रशिया टाइज, ऑयल एंड डिफेंस परचेज, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी डिबेट्स, अमेरिकन पॉलिटिशियन है वो समटाइम्स रेज क्वेश्चंस अबाउट इंडियाज इंटरनल पॉलिटिक्स policies, sorry, media freedom or minority rights. India sees this as interference in domestic affairs. उसके बाद जो चाइना फैक्टर है, द यूएस वांट्स इंडिया टू बी अ फुल पार्टनर अगेंस्ट चाइना, बट इंडिया प्रेफर्स टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी
and not be tied to any single block. उसके बाद है India's strategic dilemma. This brings us to India's biggest challenge, strategic dilemma. India wants to strengthen ties with the US, but at the same time, it cannot completely abandon its old friends like Russia. Role in Indo Pacific versus strategic autonomy. इन द इंडो पैसिफिक इन जो इंडो पैसिफिक का जो एरिया है इसमें इंडिया क्लोजली वर्क करता है यूएस के साथ में बट इट स्टिल अवॉइड्स बिकमिंग पार्ट ऑफ अ फॉर्मल मिलिट्री अलायंस एंड एट होम India's top priorities are still economic growth, poverty reduction, and national security. So, India must balance partnership without losing our independence. यानी इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस के साथ समझौता नहीं कर सकता। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है फ्यूचर आउटलुक के ऊपर। व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस। इसमें जो टॉपिक्स है वो स्ट्रेंथनिंग हाई टेक एंड डिफेंस कोऑपरेशन, न्यू ट्रेड एग्रीमेंट्स पॉसिबल, ग्रेटर रोल इन मल्टीलेटरल फोरम्स, G20, UN reforms, US sees India as counterweight to China, and India views US as partner, not petrol. इनको हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट, हाईटेक एंड डिफेंस कॉपरेशन। Expect more details in advanced defense system, drones, cybersecurity, and semiconductors. ये हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं यूएस से। न्यू ट्रेड एग्रीमेंट्स पॉसिबल हो सकते थे बट अभी फ़िलहाल तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है। ट्रम्प का जो रवैया है वो पूरी तरीके से चेंज हो रखा है। बट ऐसी पॉसिबिलिटी पहले लगाई जा रही थी कि बहुत कंट्रीज़ में मूव टुवर्ड्स रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड डीपनिंग इकोनॉमिक टाइज, और अभी भी ये पॉसिबल हो सकता है। मल्टीलेटरल रोल, जो यूएस है वो सपोर्ट करता है इंडिया के परमानेंट मेंबरशिप को इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया इज ऑल्सो लीडिंग इन द G20 एंड क्लाइमेट नेगोशिएशंस, और काफ़ी बढ़ चढ़ के इंडिया अपना रोल प्ले करता है इनमें। चाइना काउंटर बैलेंस, जो यूएस है वो देखता है इंडिया को एज अ नेचुरल पार्टनर टू बैलेंस चाइनाज राइज। आफ्टर दैट इंडिया व्यूज यूएस as partner, not patron. India will continue to cooperate but will not accept a junior partner role. And in the conclusion, friends, India and US relations are at their strongest level in the starting of 2025. Trade, technology, defense, and people to people ties are were flourishing. फिलहाल थोड़ा पॉज लगा हुआ है, चीज़ें नेगेटिव डायरेक्शन में हैं बट स्टिल कुछ अच्छा हो आने वाले टाइम में। बट challenges remain, whether it is balancing Russia, handling China, or maintaining independence. So we can say the relationship is a mix of partnership and dilemma. The future will depend on how both countries manage differences while building on common interest. Okay, thank you.